Hello, I am Kavita Singh. Welcome to Lucid Lectures. Today's topic is blood grouping. In blood grouping or in blood group, we will see that what are the things are there that defines the blood group and what types of problem emerges when blood of two different types of blood group mixes together. Okay, so let's start blood group. Blood group was first discovered by the Carl and Stina in 1900. Okay, 1900 से पहले blood transfusion was like a mystery because survival rate wasn't absolute. ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, कुछ लोग जी जाते थे, कुछ लोग मर जाते थे, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल डज नॉट अवेयर विद द फैक्ट दैट एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट blood or every person had a different blood group. Okay, but now we know that every person has a different blood group. Okay, and before the blood transfusion the blood compatibility is very important or the blood की matching बहुत important होती है before the blood transfusion. Okay, so we know that there is 4 types of blood group: A, B, AB and O. Okay, and the study of these all blood groups in common it is known as the ABO blood group system. ABO blood group system. Blood group system. Okay, so we will discuss what are the things that we study under the ABO blood group system. Actually only the basis or the primary thing that is responsible for the particular type of blood group that we study within ABO blood group system, and second, what are the problems emerges when incompatible blood mixes together. Next, other than ABO blood group, अगर आप blood group को observe करो, you will see some positive और negative sign with the blood group. ब्लड ग्रुप के साथ कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होते हैं. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, बी है तो बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव हो सकता है, लाइक एज ए बी है तो ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. ओके, द सेकेंड थिंग दैट वी विल स्टडी इज व्हाट आर दीज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. ओके, इन कॉमनली the study of these negative signs over the blood group is known as the RH blood group system. RH blood group system. Okay, so ABO blood group system and RH blood group system, that is what we have to discuss today. Okay, so first of all we will see what are the basis for this. So let's start. Basis for the ABO blood group system. Basis of ABO blood group. We can use blood grouping or blood typing here. Blood grouping or typing. ओके, सो क्या बेसिस होती है कि पर्टिकुलर टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, बी होगा, ओ होगा, क्या होगा. ओके, सो इफ यू हैव रिमेंबर इन आरबीसी सेक्शन आई हैव सेड दैट देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज. आरबीसीज के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं दैट आर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. सो लेट्स मेक सम diagram to better understand this or for the visualization. So suppose this is the RBCs. As I have said, surface पे इसके क्या होंगे, कुछ proteins होती है. Make some random diagram to understand the topic well. Okay, तो suppose ये RBC है और उसके surface पे ऐसे कुछ proteins है. Okay, RBC. Okay, so these proteins are actually the ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है. ओके, प्रोटीन्स. ओके, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, जब प्रोटीन के साथ कोई ग्लूकोज अटैच्ड हो जाता है. ओके, देन प्रोटीन इज नोन एज द ग्लाइकोप्रोटीन. इन जनरल दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज नोन एज द एंटीजन. ओके, इन जनरल इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं.
Okay, so now we can say that the antigen found on the surface of the RBCs are responsible for the particular type of blood group. Okay, so antigen जो होते हैं surface of RBCs, एक तो antigen होते हैं on the surface of the RBCs, parallel to the antigen pre-formed antibodies होती हैं plasma में, both together are responsible for the blood group. Okay, so वन थिंग इज द एंटीजन, एक तो एंटीजन होगा जो ब्लड ग्रुप को डिफाइन करेगा या फिर बेसिस बनाएगा, दूसरी चीज़ें क्या होंगी, एंटीबॉडी होंगी. सो वी कैन नॉट सी दैट व्हाट इज द जनरल डिफिनेशन ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी. ओके, सो एंटीजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड स्मॉल जी. ओके, एनीथिंग इन आवर बॉडी विच इज डिटेक्टेड एज द फॉरेन, ओके, विच इज फॉरेन फॉर आवर बॉडी, फॉरेन फॉर बॉडी, और नॉन सेल्फ जो हमारी बॉडी का नहीं है. ओके, या फॉरेन है तो नो बॉडी का नहीं है, वो क्या होता है, एंटीजन होता है. दैट इज द एंटीजन. एज वेल एज दैट फॉरेन पार्टिकल थिंग और पैथोजन इज एबल टू इंड्यूस सम इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एज वेल एज दैट इज एबल टू इंड्यूस सम immunological response, immunological response. ओके, सो कोई भी पार्टिकल, कोई भी पैथोजन, एक तो वो फॉरेन होना चाहिए, दूसरा क्या करे, वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे, तब वो क्या हो जाता है, एंटीजन हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, ये कुछ भी हो सकता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकती हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. बेसिकली जो एंटीजन होते हैं वो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट अबाउट द एंटीबॉडी. Like antigen, antibodies are denoted by capital A and small b. Okay, they are the defending proteins. They are the defending proteins. ये क्या होती हैं, defending proteins होती हैं, defending proteins होती हैं. Okay, suppose हमारी बॉडी में एंटीजन ने एंट्री ली. ओके, एंटीजन ने एंट्री ली और इट इज़ लार्ज इनफ टू इंड्यूस सम इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई. इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जब होती है तब हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं, दोज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज द प्लाज्मा सेल्स. ओके, कुछ प्लाज्मा सेल्स होती हैं. एक्चुअली प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं और मैच्योर फॉर्म होती हैं बी सेल्स का. ओके, तो क्या होता है, एंटीजन की एंट्री हुई, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हुआ. ओके, इन इनकाउंटर ऑन इन अगेंस्ट टू दैट एंटीजन हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी की बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी सिक्रेट करती है. ओके, सो नाउ हियर वी कैन से दैट एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड अगेंस्ट द एंटीजन ऑन द इनकाउंटर विद द एंटीजन. सो इनकाउंटर होने पे हमारी बॉडी में एंटीजन की एंट्री होने पे एंटीबॉडी सिक्रेट होती है. और कहाँ से सिक्रेट होती है, बी सेल से सिक्रेट होती है. बी सेल्स क्या है, B cells forms the plasma cells. Okay, so plasma cells से secrete होती हैं, but plasma cells are the type of the B cells. Okay, so these are the defending proteins. One more thing about the antibody. Okay, they are also known as the immunoglobulins. Immunoglobulins. Okay, so एंटीजन क्या होता है, विच इज़ फॉरेन फॉर द बॉडी इज एंटीजन. एंटीबॉडीज क्या होती हैं, अ डिफेंडिंग प्रोटीन सिक्रेटेड अगेंस्ट द एंटीजन ऑन इनकाउंटर ऑफ द एंटीजन विद आवर इम्यून सिस्टम. ओके, सो दीज टू थिंग्स टुगेदर makes the basis for the particular type of blood group. We have seen that antigens are found on the surface of the RBCs. Parallel to them, antibodies are found in the plasma of the blood, okay, for defining the blood group. Next, we're gonna see that how this happens. Suppose there is 4 person, take some random name like कोई टिंकी है, कोई मिंकी है, कोई चिंकी है या और कोई लल्लू है. ओके, 4 लोग हैं. टिंकी का सपोज करते हैं ब्लड ग्रुप ए है, मिंकी का ब्लड ग्रुप बी है और चिंकी का ब्लड ग्रुप ए बी है और लल्लू का ब्लड ग्रुप ओ है. ओके, एक एक करके हम सबके आरबीसीज बनाएंगे एंड देन वी विल शो दी एंटीजन ऑन देयर सरफेस एंड डिस्कस दी एंटीबॉडीज इन दी plasma.
Okay, although we can see that we know that there is 4 types of blood group, but एंटीजन होते हैं सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, एक एंटीजन ए होता है और दूसरा एंटीजन बी होता है इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. although there is more than 100 antigens are discovered on the surface of the RBCs. RBCs के सरफेस पे more than 100 एंटीजन डिस्कवर्ड हो चुके हैं, बट उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बी है और तीसरा दैट वी गोना डिस्कस RH एंटीजन है. ओके, सो देयर इज 4% with different blood groups. Let's make some diagram. Suppose ये टिंकी की RBCs है. ओके, टिंकी की RBCs पे as I have said कि क्या होगा, एंटीजेंस होंगे. ओके, बना लिए कुछ एंटीजेंस बना लिए टिंकी की RBCs पे. ओके, अब टिंकी की RBCs पे जो एंटीजेंस होंगे, अगर टिंकी का ब्लड ग्रुप ए है तो उनकी आरबीसीज पे जो एंटीजन होंगे वो एंटीजन क्या होंगे, एंटीजन ए होगा. ओके, अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसीज पे जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन ए होते हैं. एज आई हैव सेड कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ऑन द इनकाउंटर ऑफ द एंटीजन सिक्रेट होती हैं. अगर हमारी बॉडी में एंटीजन की एंट्री होती है तभी एंटीबॉडी सिक्रेट होती हैं. बट अनलाइक टू द यू नो ट्रेडिशनल डिफिनीशन ऑफ द एंटीबॉडीज, ब्लड ग्रुप सिस्टम ये होता है कि प्लाज्मा में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अवेलेबल होती हैं. ओके, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम गोना टेल एट द एंड ऑफ द लेक्चर. क्यों प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं. ओके, क्यों नहीं ये ऑन द इनकाउंटर सेक्रेट होती हैं. ओके, सो अच्छा, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है, टू किल द एंटीजन. ओके, सो ये टिंकी की आरबीसीज पे एंटीजन ए है तो इनके लिए तो ये एंटीजन नहीं हुआ, इनके ब्लड के लिए, इनके इम्यून सिस्टम के लिए तो एंटीजन खुद इनके लिए एंटीजन का वर्क नहीं करेगा. इनके ब्लड के लिए एंटीजन का वर्क कौन करेगा, एंटीजन बी वर्क करेगा. तो अब अगर इनके ब्लड में कहीं से भी एंटीजन बी वाली आरबीसीज आ जाएं तो इसके इम्यून सिस्टम का क्या वर्क होगा, टू किल दैट एंटीजन. ओके, सो जो यहाँ पे एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी, ओके, एक्चुअली इट राइट्स एज एंटी बी एंटीबॉडी. ओके, सो अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी सरफेस पे, उसके आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी बी होती है. जस्ट अपोजिट होती है, जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, क्योंकि एंटीबॉडी का वर्क ही होता है कि एंटीजन को किल करे. ओके, दिस इज द बेसिस. चलो, मिंकी है, ये मिंकी की आरबीसीज हो गई. ओके, अब इनकी ही सरफेस पे एंटीजन होगा. वी कैन इजिली गेस कि यहाँ पे जो एंटीजन होंगे मिंकी की सरफेस पे वो कौन से एंटीजन होंगे, एंटीजन बी होंगे, सिंपली एंटीजन बी होंगे. ओके, सो इनके सरफेस पे जो एंटीजन होंगे वो क्या होगा, एंटीजन बी होगा. ओके, बिकॉज एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी हो जाएगी. ओके, इनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी, ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी हो जाएगी, अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए हो जाएगी. ऐसा ही सेड, 2 ही एंटीजन होते हैं तो 2 ही एंटीबॉडी भी होगी. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, चिंकी का देखते हैं. चिंकी की आरबीसीज बना ली. अब चिंकी की आरबीसीज पे क्या होगा, दोनों ही एंटीजन होंगे. ओके, देयर विल बी दी बोथ द एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज विच पर्सन हैव ब्लड ग्रुप ए बी. ओके, अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसीज के सरफेस पे दोनों एंटीजन होंगे. ओके, सो एंटीजन यहाँ पे ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा. सो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. ओके, एज अब इनके लिए कोई भी एंटीजन ऐसा एंटीजन नहीं वर्क करेगा तो जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, कोई नहीं होगी. ओके, बिकॉज दे हैव और हर आरबीसीज हैव बोथ एंटीजेंस ए एंड बी, सो हर प्लाज्मा डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज. ओके, सो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगी. ओके, सो लल्लू का ब्लड ग्रुप ओ है. लल्लू की आरबीसीज बना लेते हैं. ओके, लल्लू का ब्लड ग्रुप ओ है. इनके सरफेस पे क्या होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा. देयर विल बी
नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द लल्लूज आरबीसीज, नो एंटीजन, ओके, एंटीजन कोई नहीं होगा। सो एंटीबॉडी क्या होगी, जो एंटीजन एब्सेंट होता है उसके लिए एंटीबॉडी होती है। यहाँ पे दोनों एंटीजन एब्सेंट है तो दोनों के लिए एंटीबॉडी होगी। सो यहाँ पे होगी एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, ओके। सो अप टू हियर एंटीजन एंड एंटीबॉडी इररिस्पेक्टिव टू देयर ब्लड ग्रुप के कंपैरिजन में एंटीजन और एंटीबॉडी, ओके, देख लिया। सपोज अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है अगर दो इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप मिक्स होते हैं, ओके। नाउ वी विल सी दैट व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और देयर कैन बी टू डिफरेंट और इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप मिक्सेस टुगेदर। सपोज क्या हुआ, मिंकी का एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज मिंकी का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मिंकी का एक्सीडेंट हो जाता है और बिना ब्लड ग्रुप को टेस्ट किए, ओके, ब्लड ग्रुप को टेस्ट किए डॉक्टर ने मिंकी को टिंकी का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, ब्लड को क्या कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया, किसके ब्लड को, टिंकी के, विच मीन्स बी ब्लड ग्रुप है और ए ब्लड ग्रुप उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, ओके। व्हाट हैपेंस इन जनरल, ओके, व्हाट हैपेंस इन जनरल ऑन द ट्रांसफ्यूजन ऑफ मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप, क्या होता है इन जनरल में एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है देयर विल बी द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विल कॉज, ओके, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक टर्म यूज होता है इफ सच थिंग हैपेंस कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। इन मोर बायोलॉजिकल टर्म दिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज नोन एज द एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। व्हाट हैपेंस इन द एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन एक्चुअली द क्लम्पिंग ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ओके। एग्लूटिनेशन क्या होता है, अच्छा मैंने एज आई हैव सेड कि एंटीबॉडी का वर्क क्या होता है, टू रिमूव द एंटीजन, ओके। कोई भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हुई है तो उसको रिमूव करना, तो रिमूव कैसे करती है, बाय क्लम्पिंग विद देम, उसके साथ क्लॉट बना के उसको रिमूव करती है और उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, एग्लूटिनेशन। सो व्हाट हैपेंस इन द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और इन द एग्लूटिनेशन, द क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, क्लम्प हो जाते हैं, ओके। एग्लूटिनेशन का एक और यूज है, ये जो रिएक्शन है एग्लूटिनेशन इज आल्सो यूज इन द टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का जो हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, इन दैट थिंग वी यूज द एग्लूटिनेशन रिएक्शन, टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, ओके। सो हियर we will that कि what happens in the agglutination, क्लम्पिंग हो जाती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ढेर सारे क्लॉट बन जाएंगे ब्लड में, थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स ढेर सारे क्लॉट बन जाते हैं इफ सच थिंग हैपेंस, ओके। अब ढेर सारे बॉडी में जगह जगह पे क्लॉट बन गए हैं, ढेर सारे क्लॉट बन गए हैं, ब्लड क्लॉट बन गए हैं, तो दो चीज़ें होंगी, ओके, देयर कैन बी टू थिंग्स। क्लॉट बना है, सपोज ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे क्लॉट है, ओके, और यहाँ पे कोई ऑर्गन है, so this organ will not get the nutrient and the oxygen, यहाँ पे ना ऑक्सीजन पहुँचेगी और ना ही this part will receive the nutrients, तो ना न्यूट्रिएंट पहुँच रहा है ना ऑक्सीजन पहुँच रही है, तो this part will feel the damage, क्या फील होगा, यहाँ पे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, अच्छा, if you can see that और कैन रिकॉल दैट कि क्लम्पिंग हो रही है एंटीजन और एंटीबॉडी की, बट अल्टीमेटली क्लॉट किसका बन रहा है, आरबीसीज का, क्लॉट किसका बन रहा है, आरबीसीज का, क्योंकि एंटीजन कहाँ पे है, आरबीसीज के सरफेस पे है, तो क्या हो रहा है, आरबीसीज का क्लॉट बन रहा है। और आरबीसीज में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ओके। सो अल्टीमेटली बॉडी के पास क्या वर्क आ गया, टू रिमूव द हीमोग्लोबिन, रिमूवल ऑफ हीमोग्लोबिन, रिमूवल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब पूरी बॉडी में जगह जगह पे क्या है, आरबीसीज के क्लॉट है, ओके। सो फर्स्ट फंक्शन बॉडी हैज बिकम इज टू रिमूव द hemoglobin, and the removal of the hemoglobin is commonly known as, not removal actually, the breakdown, क्योंकि बिना breakdown हुए तो hemoglobin remove नहीं हो सकती है body से, okay। If you want to see the proper removal of the hemoglobin, you can see the eryptosis video
फॉर द रिमूवल ऑफ द हीमोग्लोबिन. सो अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन के रिमूवल के लिए हीमोलिसिस हो गया, हीमोलिसिस विच मीन्स हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन. ओके, अब हीमोलिसिस हो रही है. ओके, हीमोलिसिस हो रही है और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन किससे बनी हुई है, अल्फा और बीटा चेन से बनी हुई है. ओके, सो हमारे ब्लड में ढेर सारी क्या हो गई, अल्फा और बीटा चेन हो गई. और अब रिमूवल किसका होना चाहिए, अल्फा और बीटा चेन का होना चाहिए. तो ये दोनों अल्फा और बीटा चेन ब्लड के थ्रू ढेर सारी पहुंच जाएंगे, किसके पास, किडनी के पास पहुंच जाएंगे. दे विल रीच टू द किडनी फॉर देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ओके, अब किडनी के पास इतने ज़्यादा हीमोग्लोबिन के पार्ट्स आ गए हैं, किडनी इज नॉट एबल टू फिल्टर दैट मच ऑफ द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द ब्लड. ओके, और किडनी क्या हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी. और ओवरलोड होने के बाद क्या होगा, किडनी फेलियर हो जाएगा एंड द पर्सन विल डाई. किडनी फेलियर, सो एंड द पर्सन विल डाई. ओके, पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. ओके, फिर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा. व्हाट हैपेंस इफ incompatible or mismatched blood group mixes together, the transfusion reaction takes place. Transfusion reaction is known as the agglutination. What happens in the agglutination? Clumping or clotting of the RBCs or the antigen antibody takes place. In resultant to that, the clots are formed throughout the body, throughout the blood vessels. Okay, that deprive the particular organ from the reaching of the nutrients and the oxygen. That leads to the damage of the organ. In other hand, the body feels the removal of the hemoglobin as the clots are formed of the RBCs. In that case, hemolysis started. Okay, and because of that, kidney feels overloaded for the filtration of the alpha and beta chain of the hemoglobin. And finally, because of the the overwhelmed kidney fails to does that work, and finally the person dies because of the failure of the kidney. If अगर हम तो डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं बिना मैचिंग के. ओके, सो या तो किडनी फेलियर हो जाएगा या फिर मल्टीपल ऑर्गन के डैमेज से पर्सन की डेथ हो जाती है अगर हम टू बिना मैच के ब्लड ग्रुप किसी को ट्रांसफ्यूज हो जाता है. ओके, सो हियर देखते हैं. लाइक आई हैव सेड कि एग्लूटिनेशन में भी क्या हो रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हो रही है. एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है. ओके, सो वी कैन सी दैट यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन दोनों है. यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन दोनों है. सो चिंकी क्या कर सकती है, मान लो चिंकी का एक्सीडेंट हो जाए. ओके, चिंकी का एक्सीडेंट हो जाए, चिंकी को ब्लड की ज़रूरत है. तो चिंकी को कौन ब्लड दे सकता है, मिंकी भी दे सकती है, मतलब पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है वो भी दे सकता है. पिंकी भी दे सकती है, विच मीन्स पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो भी दे सकता है. एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है, एंटीजन ही नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी दोनों है. तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी. जो लल्लू है विच मीन्स ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन सबको ही ब्लड दे सकता है. ओके, सो यहाँ पे एज चिंकी और द पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम एवरी अदर ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ओके, एंड एज वी कैन सी दैट कि ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन पे क्या होता है, उनकी आरबीसीज के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, देयर विल बी नो एंटीजन. तो ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन किसी को भी ब्लड दे सकता है. द पर्सन कैन गिव द ब्लड टू द AB, टू द B and to the A also. Okay, because of that the person with blood group A is known as the universal donor. This is the common thing. I think everyone knows that which blood group known as the universal donor or the recipient from very primary of our classes. Okay, so up to here ABO blood group, how they are defined and what types of problem emerges when these two blood group mixes together. Okay, next that we have to discuss is the RH blood group system. Okay, जो दूसरी चीज हमें डिस्कस करनी है वो क्या है, RH blood group system है. Okay, RH blood group system.
अभी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम लाइक द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, यहाँ पे भी एंटीजन होता है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो एंटीजन थे, और जो RH ब्लड ग्रुप का सिस्टम, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीजन होता है वो एंटीजन D होता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इन कंपैरिजन टू द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में वी हैव सीन दैट कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, पहले से फॉर्म्ड RBCs होती हैं प्लाज्मा में। बट अनलाइक टू ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पर्सन हैव अगर पर्सन की RBCs की सरफेस पे क्या है, एंटीजन D है, पर्सन की RBCs की सरफेस पे एंटीजन क्या है, D है, तो वो क्या हो जाएगा, वो RH पॉजिटिव हो जाता है। अगर एंटीजन D प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो सपोज कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है और उसके RBCs के सरफेस पे एंटीजन D है, तो वो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इसको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, बिकॉज ऑल्दो द एंटीजन इज D, फिर भी इसको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्यों कहते हैं, एज इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द रेसस मैकॉक और द रेसस मंकी। ये रेसस मंकी में फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए इसको मैकॉक, ओके, थोड़ा फैंसी नाम है मंकी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर्ड इन द रेसस मंकी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऑल्दो एंटीजन इज द D। और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के भी मोर देन 12 एंटीजन्स आर डिस्कवर्ड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द D एंटीजन। ओके, वन मोर थिंग अबाउट द RH एंटीजन, एज आई हैव सेड दैट कि इसके केस में ऐसा नहीं होता है कि प्लाज्मा में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं। इस केस में क्या होता है, मान लो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव है, वो क्या है, RH नेगेटिव है, मतलब उसके सरफेस पे D एंटीजन नहीं है, RBCs के सरफेस पे D एंटीजन नहीं है, और एक का क्या है, RH अगर है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है और पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है। ओके, बट नेगेटिव की क्या प्रॉब्लम होती है, इफ एनी हाउ द RH positive blood group mixes with the RH negative blood group, it causes the sensitization, जो टर्म यूज होता है for the encounter with the RH antigen or any other antigen with the blood RBC surface antigen is known as the sensitization. ओके, सो अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और उसको एनी हाउ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उसके ब्लड से मिक्स हो जाता है, तो उसका ब्लड या फिर उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, सेंसिटाइज्ड हो जाएगा। ओके, सेंसिटाइज्ड हो जाएगा। क्या होता है आफ्टर द सेंसिटाइजेशन के बाद क्या होता है, अब इसका जो इम्यून सिस्टम है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटी RH एंटीबॉडी सिक्रिएट करने लगता है, एंटी RH एंटीबॉडी फॉर्म करने लगता है। ओके, वो क्या करता है, एंटी RH एंटीबॉडी फॉर्म करने लगता है। तो अब सेम चीज़ होगी, डिफरेंट ब्लड ग्रुप आया है आफ्टर सेंसिटाइजेशन, विच मीन्स मिक्सिंग जो होती है उसके बाद वो जो एक सेंस आता है दैट एनी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड हैज मिक्सेस विद इम्यून सिस्टम ऐसा रियलाइज करता है कोई डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप मिक्स होता है, तो वो जो रियलाइजेशन होता है उसको सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। अब सेंसिटाइजेशन हो गया है, उसके बाद ये क्या करेगा, उसका इम्यून सिस्टम नेगेटिव वाले का एंटीबॉडीज बनाने लगता है, एंड दैट एंटीबॉडीज नोन एज एंटी RH एंटीबॉडीज। ओके, अब क्या होगा, लाइक एज अब अपोजिट एंटीजन एंटीबॉडी हो गई है तो फिर से वही होगा, एग्लूटिनेशन होगा। ओके, और या तो ऑर्गन डैमेज से डेथ हो जाएगी और या तो किडनी फेलियर से डेथ हो जाएगी या फिर दोनों के होने से डेथ हो जाएगी। सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो। ओके, सो दिस इज इट। अच्छा, इसके साथ क्या है, एक स्पेशल केस भी रिलेटेड है विथ RH इनकम्पैटिबिलिटी, अदरवाइज दिस मच इज इनफ। स्पेशल केस ये है, इफ सपोज मान लो कोई मदर है,
उसका क्या है, ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और वो RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है, ओके, देन इट कॉजेज द प्रॉब्लम. वी विल सी दैट हाउ दिस हैपन्स. ओके, सपोज ये कोई मदर है जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप है जो कि नेगेटिव है, ओके, और उसने बेबी जो कंसीव किया वो क्या है, पॉजिटिव है. और ये पॉजिटिव कहाँ से आया, फादर से आया, क्योंकि फादर का रहा होगा पॉजिटिव. ओके, सो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और ये बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है. ओके, वी नो दैट कि मदर का और बेबी का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या करता है, इट कीप्स द प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द मदर्स ब्लड टू द फीटस ब्लड. ओके, ऑल्दो न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज और बेस्ट एक्सचेंज एवरीथिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा. फिर भी ये क्या करता है, मदर के ब्लड को बेबी के ब्लड से मिक्स नहीं होने देता है. ओके, सो अच्छा, और प्लेसेंटा में भी एक कोरियन लेयर होती है. ओके, वी विल सी दैट इन द डेवलपमेंट. देयर इज 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द एम्ब्रियो. ओके, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस. ओके, सो यॉर्क सैक. ओके, सो क्या करती है, प्लेसेंटा की कोरियन लेयर मदर और बेबी के ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी. ये क्या है, अगर मदर ने पहला बेबी RH पॉजिटिव कंसीव किया ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है. ओके, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि प्रॉपर सेपरेशन होता है. बट while गिविंग बर्थ, अब पता है कि प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाता है while गिविंग द बर्थ. सो व्हाट हैपेंस while गिविंग बर्थ. ओके, सो ये जो सेपरेशन होता है दैट ब्रेक्स. ओके, और मदर का और बेबी का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है. बेबी की कुछ ब्लड सेल और RBCs दैट मूव टू द मदर्स ब्लड. ओके, दिस हैपेंड while गिविंग बर्थ के टाइम जो कोरियन लेयर होती है प्लेसेंटा की वो ब्रेक हो जाती है. तो उस टाइम पे कुछ RBCs मूव करके कहाँ पहुँच जाती हैं, मदर के ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती है. अब यहाँ से बेबी की RH पॉजिटिव RBCs कहाँ पहुँच गई, मदर के ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गई. अब क्या हो गया, इसका ब्लड सेंसिटाइज्ड हो गया. क्या हो गया, सेंसिटाइज्ड हो गया. अब सेंसिटाइज्ड हो गया तो अब क्या करेगा, द ब्लड और द इम्यून सिस्टम विल सीक्रेट द एंटीबॉडीज. ओके, और कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, anti-RH एंटीबॉडीज. ओके, एंटीबॉडीज. अब क्या होगा, फर्स्ट बेबी कोई दिक्कत नहीं. अब सपोज कि मदर ने फिर से सेकेंड बेबी क्या किया, पॉजिटिव कंसीव किया. ओके, मदर ने फिर से सेकेंड बेबी भी क्या हुआ, सेकेंड बेबी फिर से क्या हो गया, वो RH पॉजिटिव हो गया. ओके, अब क्या हो गया, पहले ही ब्लड सेंसिटाइज्ड हो गया. देयर इज ऑलरेडी फॉर्म्ड anti-RH एंटीबॉडीज इन दी ब्लड स्ट्रीम ऑफ द मदर. तो अब क्या, ऑल्दो अभी भी प्लेसेंटा है बट जो एंटीबॉडीज बनी है वो अभी भी प्लेसेंटा है दैट कीप्स द प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द मदर्स ब्लड फ्रॉम द फीटस ब्लड. बट अभी क्या हो गया है कि जो एंटीबॉडीज हैं दे कैन मूव फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द बेबीज ब्लड, फीटस ब्लड. तो अब यहाँ से जो एंटीबॉडीज हैं दे स्टार्ट टू मूव टू द सेकेंड बेबीज ब्लड स्ट्रीम. ओके, जो दूसरा बेबी है उसके ब्लड स्ट्रीम में आने लगेंगे एंड दे स्टार्ट टू डिस्ट्रक्ट द फीटस RBCs. वो RBCs को क्या करने लगेंगे, खराब करने लगेंगे, किल करने लगेंगे, डीनेचर्ड करने लगेंगे, व्हाटएवर. ओके, लाइक एस. तो ये सब होने लगेगा. अब व्हाट हैपेंस इन दैट केस, लेट्स सी. अगर ऐसा होने लगा सो तो 2 कंडीशन आ सकती हैं. एक तो माइल्ड हो सकती है जो कि क्योरेबल हो. ओके, माइल्ड हो सकती है अगर उतना ब्लड सेंसिटाइज्ड नहीं हो गया है, सो कंडीशन कैन बी माइल्ड. ओके, उसमें सिर्फ माइल्ड कंडीशन में क्या होगा, जॉन्डिस होगा या फिर एनीमिया होगा. ओके, हो सकता है ये क्योरेबल हो बट इसके केसेस लीस्ट होते हैं. ओके, बट इन सीवियर केसेस चीज़ें वही होंगी
जॉन्डिस एंड एनीमिया होगा, बट ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द हीमोलिसिस एंड एग्लूटिनेशन दैट रिजल्ट टू दी हीमोलिसिस, और उसकी वजह से क्या होगा? किडनी फेलियर हो जाएगा या फिर मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, और क्या होगा? फिटस की डेथ हो जाती है, फिटस की डेथ हो जाती है, या फिर न्यू बॉर्न की डेथ हो जाती है जस्ट आफ्टर द बर्थ। ओके, इफ सच थिंग हैपेंस, और अगर मदर सक्सेसिवली जितने भी RH पॉजिटिव, पहला RH पॉजिटिव अगर बेबी कंसीव कर लिया, उसके बाद जितने भी RH पॉजिटिव बेबी कंसीव करेगी, सबके साथ यही होता है। ओके, या तो हो सकता है इन रियल केसेस दैट इज क्योरेबल, अदरवाइज या तो फीटस की डेथ हो जाती है या तो न्यूबॉर्न की डेथ हो जाती है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द, काफी फैंसी टर्म है इसका, एरेथ्रोब्लास्टोसिस, फिटालिस। ओके, और जो डिजीज का नाम है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, या फिर इसको एक और नाम देते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्या होता है? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस और हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ओके, क्या है ये? स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility between the mother and fetus. If it happens, it does not affect the first baby, but successfully whichever pregnancy the mother conceived the RH positive baby, it can be fatal for the successive or subsequent pregnancies. Okay, but in nowadays, what is happening in nowadays, this condition is curable. Okay, this condition or the erythroblastic fetalis or RH incompatibility is curable. मार्केट में एक इंजेक्शन अवेलेबल है, दैट इज रोगम, और किसी भी नाम से अवेलेबल है, समटाइम रोगम और रो एंटीबॉडीज। ओके, सो ये व्हाट हैपेंस, ये क्या होता है कि बर्थ के, डिलीवरी के 72 आवर के अंदर ये इंजेक्शन क्या है, मदर को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो भी एंटी RBCs होती हैं, फर्स्ट हर डिलीवरी के बाद जो भी RH पॉजिटिव RBCs होती हैं, जो मदर के ब्लड स्ट्रीम में गई होती हैं, उसको क्या करता है ये इंजेक्शन उन RBCs को किल कर देता है। ओके, तो दिस इंजेक्शन इज इंजेक्टेड यूजुअली विद इन 72 आवर, ओके, फ्रॉम द टाइम ऑफ द डिलीवरी। ओके, सो दिस वाज अ स्पेशल केस अबाउट the RH incompatibility. Okay, I think I have to say about that why in ABO blood group system the antibodies are preformed found in the plasma. Okay, but it not happens in case of the D antigen or in case of the RH antigen. What happens, हमारी बॉडी में माइक्रोब्स की एंट्री होती रहती है। ओके, पैथोजेंस से हम सिक होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। ओके, सो इन दैट केस एज आई हैव सेड कि एंटीजन क्या है, ये बेसिकली क्या होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो हमारा AB एंटीजन है, ये बहुत कॉमन है, इसका सेलुलर कंपोनेंट बहुत कॉमन है। तो कोई ना कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ना कोई ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया होता है कि जिसके पास ऐसे सिमिलर एंटीजन्स होते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले से फॉर्म्ड करके एंटीजन एंटीबॉडी A और B रखती है। अगर ब्लड A है तो उसके पास B होता है, और ब्लड B है तो उसके पास A होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ओके, वन मोर थिंग, अच्छा, वी हैव सीन दैट कि RH इनकम्पैटिबल है। अगर मदर
और बेबी का इनकम्पैटिबल RH ब्लड ग्रुप है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है. इट कॉजेज द एरेथ्रोब्लास्टोफिटालिस और द hemolytic disease of the newborn, but it does not, such things never happen in case of the ABO blood group. अगर मदर का ब्लड ग्रुप सपोज A है और फिटस का ब्लड ग्रुप B है, इट नेवर हैपन्स. वाई सच थिंग इन द नेचर? ऐसा क्यों होता है कि RH incompatibility is problematic but not the ABO incompatibility is not. What happens? जो RH जो ABO के केस में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं? IgM होती हैं. ABO के केस में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो IgM होती हैं. लेट मी मेक इट. इसके केस में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो IgM होती हैं. वी नो दैट देयर इज 4 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो IgM होती हैं. तो IgM एंटीबॉडीज क्या होती हैं? दे डू नॉट क्रॉस दी प्लासेंटा. उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो प्लासेंटा को क्रॉस करके जा सकें टू दी ब्लड ऑफ द फिटस. बट जो RH की एंटीबॉडीज होती हैं वो IgM होती हैं. वो क्या होती हैं? IgG होती हैं. वो क्या होती हैं? IgG होती हैं. ओके, सो IgG एंटीबॉडीज जो होती है दैट एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा. That's why the RH incompatibility is fatal but not the ABO incompatibility in case of the mother and fetus blood. Okay, so this is